نور العلم نور العلم نور The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے. نور العلم نور العلم نور العلم نور. حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل. وہاں سے رزق ہو عطا گمان پہنچ جس محل، وہاں سے رزق ہو عطا گمان پہنچ جس محل. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light. 5 4 3 2 1 start. العلم نور العلم نور. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ سیالکوٹ ضیاءکوٹ کے اندر موجود ہیں اور کثیر عاشقان رسول الحمدللہ سلسلہ ذہنی آزمائش کا آڈیشن دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے اسلامی بھائی، جس میں اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اسلامی بھائی بھی ہیں، جامعۃ المدینہ کے ہمارے ذمہ داران بھی ہیں، وہ بھی اس سلسلے کے اندر دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے آڈیشن کر رہے ہیں. ابھی ہمارا پہلا مرحلہ جاری ہے جس کے اندر ہم تحریری ٹیسٹ لیتے ہیں. ریٹن ٹیسٹ الحمدللہ جاری ہے، اس کے بعد یہ اس کا چیکنگ کا مرحلہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف، اگلے مرحلے کی طرف ہم جائیں گے اور اس سیگمنٹ کے اندر رکن شورا عبدالحفیظ بھائی سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے. نور العلم نور العلم نور العلم نور. حصول علم دین سے ہو مشکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے بھائی؟ 16 سال. 16 سال ان کی عمر ہے اور ہم نے تو 17 سال کی شرط لگائی ہوئی ہے. پھر آپ کیسے دیں گے ٹیسٹ؟ امید لے کر آئے تھے آپ. اونچا بولے نا، ڈر کیوں رہے بھائی؟ کیا لے کر آئے تھے؟ امید لے کر آتے ہیں. گھر سے اجازت مل جائے گی آپ کو؟ کراچی اتنا دور ہے یہاں سے جانے آنے کی. پھر آپ اکیلے کیسے سفر کریں گے؟ ناظرین یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ بچے ہیں تو اتنا دور آپ وہاں پہ جا کے پھر اکیلے رہیں گے کیسے؟ گھر سے اجازت کیسے ملے گی؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ کون سی کلاس میں؟ 9 میں پڑھتے ہیں. یہ 9ویں کلاس میں پڑھتے ہیں. یہیں ضیاءکوٹ سیالکوٹ کے اندر رہتے کہاں پر ہیں آپ؟ ٹینٹ والی سائڈ پر.
कैंट वाली साइड पर। अच्छा जी, हमें टेंट समझ आ रहा था, ये कैंट वाली साइड पर रहते हैं। तो ज़हनी आजमाइश देखते हैं आप, मदनी चैनल भी देखते हैं? चलें आप टेस्ट दें फिर देखते हैं। लेकिन आपको पहले हम बता रहे हैं कि हमने 17 साल की शर्त रखी हुई थी। ये खुद भी कह रहे हैं कि बाकी अकेले आना जाना आपके लिए मुश्किल है। देखते हैं, अल्लाह बेहतर फरमाएगा। लेकिन इनके जज्बे को सलाम है, इनके शौक़ को सलाम है, माशाअल्लाह। अल्लाह, हाँ टेस्ट करें आप। कौन सी क्लास में आप? दरसन नज़ामी कर रहे हैं? कहाँ पर? बाहर मदीना जियाकोट। बाहर मदीना, जामियातुल मदीना है, दावत इस्लामी का। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? 17 साल। 17 साल उम्र है आपकी, लगती तो कम है। आपको लगती है नाज़रीन? देखें, 17 साल लगती है आपको? 17 साल है, फरवरी में। अच्छा जी, अभी कितने महीने बाकी हैं? 4 महीने बाकी हैं। तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, आप अकेले आपका आना जाना भी। चलें 12 टेस्ट दें आप इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे इस्लाम भाई? आप ठीक हैं? आपका नाम क्या है? हसन, ऊँचा बोलेंगे? हसन महमूद नाम है आपका। अच्छा जी, उम्र कितनी है आपकी? तकरीबन 15 साल। तो आपको पता नहीं था 17 साल वालों को हमने लिया है? पता है ना, पता था या नहीं? पता था। चले वहाँ देखकर बोलेंगे आप। अच्छा जी, ये टेस्ट देने आए हैं, 15 साल के हैं। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी माशाल्लाह इनकी काविशें भी हैं। अली भाई क्या जिम्मेदारी है सिद्दीकी जोन में आपकी? शोबा तालीम सिद्दीकी और तिरमिजी जोन। शोबा तालीम सिद्दीकी और तिरमिजी जोन के अंदर ये माशाल्लाह सुन्नतों की खिदमत करते हैं। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। बहुत प्यारे इस्लामी भाई हैं माशाल्लाह। स्कूल और कॉलेजेस से भी इस्लामी भाई हमारे साथ ऑडिशन में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका क्या नाम है? तमसील, ते मीम से ये और लाम। वाह भाई, तमसील नाम शायद आपने भी पहली बार सुना हो। आपका क्या नाम है हजरत? अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला नाम है आपका। कौन सी क्लास के हैं? मैं 9th के हैं। कैसा रहा आपका और पेपर? रिटर्न टेस्ट दिया है, इजी था? तो पूरे नंबर लेंगे आप? आपका कैसा रहा हजरत? माशाल्लाह, चलें जी, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला इनको भी कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। इल्म एक नूर है जिसे अल्लाह सवजल बंदे के दिल में डाल देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे इस जियाकोट के ऑडिशन का पहला मरहला हो चुका था, रिटर्न टेस्ट हो चुका था। लेकिन कुछ इस्लामी भाई बाद में आए और इन्होंने कहा कि हम ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं, लेट आए हैं किसी भी वजह से, लिहाजा हमें महरूम ना किया जाए, ऑडिशन लिया जाए। हमारी मजलिस ने फैसला किया कि अगरचे ये लेट आए हैं मगर इनका ऑडिशन लिया जाए। हो सकता है कि इनमें से कोई होनहार इस्लामी भाई हमें हमारी टीम के लिए मिल जाए। तो इनका टेस्ट भी जारी है, इनके लिए भी दुआ करें। अगले मरहले की तरफ आपको लेकर चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत क्या हाल है? ऊपर देखकर आप बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शुएब अख्तर। शुएब अख्तर भाई कहाँ से आए? सियालकोट। सियालकोट में कहाँ से? डालवली के इलाका से। अच्छा जी, कहाँ पढ़ते हैं आप? अलाइड स्कूल शफी कैंपस डालवली से। कौन सी क्लास में? नहम। अच्छा जी, 9वीं क्लास में है ये माशाल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 17 साल। 17 साल आपकी उम्र। हमने कुछ देर पहले भी आपको एक इस्लामी दिखाए थे, वो भी 17 साल के थे मगर बच्चे लग रहे थे। लेकिन आप 17 साल के तो नहीं लग रहे, आप ज़्यादा लगते हैं यार। मैंने पहले कुरान का हिफ्ज़ किया, उसके हाँ। बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, हाफिज़ भी हैं माशाल्लाह आप। हिफ्ज़ कहाँ से किया आपने? मैंने जामिया फाहमुल कुरान डालवली। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उम्र आपकी ज़्यादा नहीं है? 17 साल तो कम लग रही है। 2001 मेरी तारीख पैदाइश है। अच्छा जी, कि उम्र छुपा तो नहीं रहे आप? नहीं, सही बात है, मैं आपको बेफाम भी दिखा सकता हूँ। अच्छा जी, ये बेफाम भी दिखा सकते हैं। चलें माशाल्लाह, लेकिन अभी 17 साल के आप हमारे इस्लामी भाई हैं, शुएब भाई। चलें टेस्ट करें आप माशाल्लाह। इल्म एक नूर है जिसे अल्लाह सवजल बंदे के दिल में
نور العلم نور العلم نور العلم نور The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. محمد عمیر رمضان، مائک لیجیے آپ بی ایس آئی این میتھس کرتے ہیں اور ٹیچر بھی ہیں، اس سے کیا مراد ہے بی ایس آئی این میتھس سے؟ بیچلر آف سائنس ان میتھمیٹکس. میتھمیٹکس بیچلر آف سائنس کیا. ٹیچر کس سبجیکٹ کے ہیں؟ میتھمیٹکس. میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں. اچھا، زکوٰۃ جو ہے وہ کتنا فیصد ہوتی ہے مال پر؟ 2.5% ہوتی ہے. کسی کے پاس اگر 10 لاکھ روپے مال ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ اس پر 2.5% آئے گی. تو کتنا 2.5% کتنا بنے گا؟ آپ تو میتھس کے ٹیچر ہیں نا. 2,500 روپے. 10 لاکھ پہ 2,500 ہوں گے یا 1 لاکھ پہ 2,500 ہوں گے؟ 10,000 روپے. ہاں تو میں نے 10 لاکھ بولے حضور. اس پہ 25,000 روپے زکوٰۃ بنے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ نماز جنازہ میں کتنے فرائض ہیں؟ کوئی فرض نہیں. کتنی سنتیں ہیں جی؟ نماز جنازہ کی سنتیں کتنی ہیں؟ واجبات کتنے ہیں؟ عید کی نماز میں کتنی زائد تکبیریں ہیں؟ 6 ہے. ٹھیک ہے، سوال کریں. آپ یہ ارشاد فرمائیے غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3. کب کب غسل کرنا سنت ہے؟ نماز جمعہ کے دن، نماز عیدین میں. اور حج کس دن ہوتا ہے؟ حج کس دن ہوتا ہے؟ 8 ذی الحج کو. اگلے بھائی دیجیے گا. محمد صوبان اتاری جی. آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں؟ جی الیکٹریکل انجینئرنگ کر چکے یا کر رہے ہیں؟ کنٹینیو ابھی 3rd سیمسٹر. اچھا، تو کیسے انجینئرنگ کرتے کرتے ذہنی آزمائش کا خیال آ گیا؟ جی بس شوق تھا ایک کہ ذہنی آزمائش. دیکھا پہلے کبھی؟ جی جی الحمدللہ. اچھا، تو تیاری کر کے آئے؟ جی. صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح سنائیں گے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. شب برات کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ شعبان کی 15ویں رات کو. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار ہیرا میں. اس وقت نبی پاک کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی. 40 سال تھی. اب یہ بتائیے کہ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کا کیا نام ہے؟ مولانا بانی دعوت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد بلال محمد. دعوت اسلامی کے میڈیا چینل کا کیا نام ہے؟ مدنی چینل. فیضان رضا کو مائک دیجیے. فیضان رضا بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال. 17 سال. درس نظامی کر رہے ہیں، کون سے درجے میں؟ درجہ ثالثہ. 3 درجے میں. اچھا، آپ بتائیے کہ پیارے آقا جب ہجرت مدینہ کو تشریف لے گئے تو کس غار میں 3 دن قیام کیا تھا؟ غار ثور. آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ابو قاسم. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن کریم کون سے مہینے میں نازل ہوا ہے؟ رمضان المبارک. کون سی تاریخ کو؟ اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو جامعہ سے چھٹی کیسے ملے گی؟ پھر چھٹیاں پہلے کی بھی ہوں گی آپ نے، تو پھر امتحان میں نہیں بیٹھنے دیں گے آپ؟ نہیں کی. پہلے چھٹیاں نہیں کی ہیں؟ نہیں. محمد نعیم اتاری جی جناب، آپ نے MBA کیا، آپ ٹیچر ہیں، کس شعبے میں ٹیچر ہیں؟ کامرس کا اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ پڑھاتے ہیں. کہاں پڑھاتے ہیں؟ سپیریئر کالج. جی سپیریئر کالج میں. نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ کون سا درود ہے؟ درود ابراہیم. سنائیں گے درود ابراہیم؟ جی.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं कि जिनको कोड़ियों को शिफा देने वाला जो है वो मौजज़ा अता किया गया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? इंजील। आप ये फरमाइए कि जो निसाब आपको दिया गया था दोनों किताबों के नाम क्या हैं? सुन्नतें और आदाब और नमाज के अहकाम। तादील अरकान क्या होते हैं? नहीं मालूम। ठीक है, तशरीफ रखिए। जी जनाब, मोहम्मद इकराम वल मोहम्मद रियाज तीसरे दर्जे में आप पढ़ते हैं जामियतुल मदीना के तालिब इल्म में। कौन से जामियतुल मदीना में? मुहद्दिस कोटलवी भरत। दावत इस्लामी का है जी। अच्छा, ठीक है जनाब, सवाल करें इमरान भाई। और स्कूल कितना पढ़े हैं आप? मैं DAE कर रहा हूँ, DAE कंटिन्यू। BI कर रहे हैं। आप ये बताएंगे कि फीसद निकालने का, परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है? कुल रकम रख के मल्टीप्लाई बाई जितने में निकालना होता है, यानी कि जितने नंबर आए हैं, नंबर जितने आए हैं उनको रख के कुल तादाद के ओवर फिर 100 कर देते हैं। सही। मज़ीद आप ये बताएं कि ये नमाज के अहकाम के अंदर कितने रिसाले हैं? 9 रिसाले हैं, 12 रसाइल हैं इसके अंदर। मुसाफिर के लिए शरई मुसाफिर कितनी है? 92 किलोमीटर। जन्नतुल माला कब्रिस्तान कहाँ है? नहीं पता। जन्नतुल बकी कहाँ है? जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा। जन्नतुल माला जो है वो मक्का पाक में। अगले भाई को माइक दीजिएगा। मोहम्मद जमील रजा अत्तारी वल्द शकील अहमद, कौन से जामिया में? जामियातुल मदीना बहार मदीना। बहार मदीना। जी सोबान भाई सवाल करें। आप ये इरशाद फरमाएं कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? इस्लामाबाद। आपका शहर ज़ियाकोट किस वजह से मशहूर है? पीर ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला। और पूरी दुनिया में मशहूर है, ये उसकी क्या वजह है? अमीर अहले सुन्नत के पीरो मुर्शिद हैं इसमें। दुनियावी तौर पे भी एक वजह है ना मशहूर होने की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर कुनियत बताइए। मशहूर कुनियत? अशार याद है कुछ आप? आला हजरत के अशार कुछ? कौन सा कलाम पसंद है आप? फिर के गली गली तबाह, फिर के गली गली तबाह ठोक, रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को चैन गवाए, है तो रजा निरासतम जुर्म पे गर लजाएं हम। क्या करते हैं आप बेटा? इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। अच्छा, किसी जामिया या मदरसे भी पढ़ते हैं? नहीं। अच्छा, दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हैं? जी। अच्छा, तो कैसे काम छोड़ के फिर ज़हनी आजमाइश में सेलेक्ट हो गए तो कैसे आएंगे फिर आगे? आ जाएंगे? काम छोड़ के आ सकेंगे फिर? छींक आने पर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो सुनने वाले पर क्या कहना वाजिब है? यरहमुकल्लाह। फिर छींकने वाला क्या कहेगा? यगफिरुल्लाह उलाना वलकुम। बदर के मैदान में कितने सहाबा किराम शहीद थे, शरीक थे? 313। उनके सामने कितने थे? क्या? कुफार कितने थे? कुफार कितने थे? 1000। जी सही। सदाकत भाई, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, ये बताएं कि न्यूट्रल और फेस क्या होता है? जी। आपकी फील्ड से मुतालिक है। न्यूट्रल और फेस आपकी तारों में होता है ना, बिजली की। जी। वो क्या होता है? जिस पे करंट लगता है वो फेस होता है। लाइव करंट। हाँ जी, क्या बता? सदाकत भाई बताएंगे ना? जी सदाकत बताइए। करंट, लाइव करंट, फेस लाइव रखो और न्यूट्रल कहते हैं। आप ये बताइए कि दावत इस्लामी के मदनी चैनल पर हफ्ते के दिन एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला लगता है, वो सिलसिला कौन सा है? सैटरडे के दिन मदनी चैनल पे एक सिलसिला लगता है, रात को प्रोग्राम लगता है। प्रोग्राम मुज़ाकरा। वो कौन हेड करता है उसे? उसकी खसूसियत क्या है? अमीर अहले सुन्नत उस पे माशाल्लाह। ज़का अली वल मोहम्मद जुल्फ़िकार दरस निज़ामी कर रहे हैं, कौन से दर्जे में आप? 5वें। कहाँ से पढ़ रहे हैं? जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना। फैज़ान मदीना जामियतुल ज़ियाकोट से। ये बताइए कि शब मेराज किस रात को होती है? शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब को। अच्छा, तो फिर शब बरात होती है? जी।
پھر شب برات کب ہوتی ہے؟ یہ شب برات کے بارے میں اچھا میں نے شب معراج پوچھا، وہ کب ہوتی ہے؟ وہ شب معراج جو ہے وہ اچھا یکم شوال کو ہم ایک دن مناتے ہیں ہر سال، وہ کیا ہوتا ہے؟ شوال کو یکم شوال، سارے خاموش رہیں گے پلیز اور بیٹھ جائیں گے. اچھا عید الفطر کس دن مناتے ہیں؟ عید الفطر یکم شوال. اچھا یہ جو ہمارے سامنے آئے ہیں ذہنی آزمائش کے ہوسٹ ہیں، ان کا نام حاجی حاجی عبدالحبیب اتاری. جناب محمد عادل رضا والسجاد اتاری، جامعۃ المدینہ درجہ خامسہ کے آپ طالب علم ہیں. ٹھیک ہے، کون سے جامعۃ المدینہ میں؟ جامعۃ المدینہ بہار مدینہ ضیاءکوٹ. بہار مدینہ. سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہوتی ہیں؟ 7. سورہ فاتحہ کو کچھ اور بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے. قرآن پاک میں کتنی سجدے کی آیتیں ہیں؟ 14. اچھا. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کس شہر میں؟ ملتان شریف. کس صحابی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. کس صحابی کو اسد اللہ کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کون سے صحابی ہیں جو نبی پاک کے چچا بھی ہیں اور پیارے آقا ان سے بڑی محبت بھی فرماتے ہیں؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی. ان کا مزار کہاں ہے؟ جنت البقیع شریف میں. غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی اور احد کے میدان میں ہی آپ کا مزار ہے. جی آپ یہ بتائیے کہ اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12. اس وقت کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ سفر. اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ عرس اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کا مزار شریف کس شہر میں ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلی شریف. اعلیٰ حضرت کے کسی صاحبزادے کا نام بتائیے. مولانا حسن رضا خان. اعلیٰ حضرت کا کوئی ایک شعر سنائیے، کوئی ایک شعر. واہ کیا جود و کرم ہے شہی بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا محمد تیرا. شاہد کو مائک دیں. شاہد بھائی آپ درس نظامی کر رہے ہیں، کون سے درجے میں؟ درجہ خامسہ. درجہ خامسہ میں ہے. اچھا جناب عمران بھائی سوال کریں. آپ یہ بتائیں کہ فتاوی رضویہ کا مکمل نام کیا ہے؟ عربی کے اندر جو ہے مکمل فتاوی رضویہ کا جلد نام. کتنی ہے فتاوی رضویہ؟ جلد کتنی ہے فتاوی رضویہ؟ 33 جلدیں ہیں. اچھا کچھ بڑھا لی انہوں نے؟ نہیں وہ اس کے ساتھ ملا. اچھا فہرست کو ملا لی. اچھا بہار شریعت کس نے لکھی ہے؟ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ. ان کا لقب کیا ہے؟ اعظمی. ان کو کیا کہا جاتا ہے مولانا امجد علی اعظمی صاحب کو؟ مفتی. صدر الشریعہ. ٹھیک ہے مفتی کہا جاتا ہے. ایک شعر سنائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. شعر سے ہے کچھ لگاؤ ہے؟ نہیں ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جی اگلے بھائی کو دیں. آپ کا نام ہے جناب کامران علی. آپ نے ایف ایس سی بھی کیا اور امامت کورس کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں؟ ابھی امامت کورس کر رہے ہیں. امامت کی شرائط بتائیں. امام بننے کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ 7. اچھا کون کون سی ہیں؟ عاقل، بالغ، مرد اور ہمارے پاس تو 6 شرائط لکھی ہیں، آپ نے بڑھا لی کوئی امامت کورس میں ایک شرط. دعوت اسلامی کے کتنے اراکین شورا ہیں؟ 26. اچھا نگران شورا کا نام کیا ہے؟ حاجی عمران اتاری. اس وقت اس کمرے میں کتنے اراکین شورا موجود ہیں؟ 2. لقمہ دینے کی شرائط کیا ہیں؟ آپ امامت کورس کر رہے ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. لقمہ دینے کی شرائط کیا ہیں؟ امام کو جو لقمہ دیا جاتا ہے. لقمہ کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب، کبھی مکروہ، کبھی سنت. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 سال آپ کی عمر ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ ثالثہ. تیسرے درجے میں. یہ بتائیے کہ عمرہ کرنے کے لیے کون سے شہر جانا ضروری ہے؟ مکے میں یا مدینے میں؟ مدینہ المنورہ. اچھا تو طواف مدینے میں کریں گے؟ مدینہ المنورہ جانا ضروری. اچھا وہیں عمرہ ہو جائے گا. اچھا واہ بھائی واہ. عمرہ فرض کب ہوتا ہے یہ آپ بتائیں؟ عمرہ کب فرض ہوتا ہے؟ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. مردوں میں پہلے کون ایمان لائے؟ حضرت علی المرتضیٰ. بچوں میں پھر کون پہلے لایا؟
हज़रत अली मुर्तज़ा। मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले ईमान लाए। ठीक है, भाई को दीजिए बराबर में। मोहम्मद बिलाल कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। आप कौन से दर्जे में? दर्जा सानिया। दर्जा सानिया में माशाल्लाह, बड़ी प्यारी आपने चादर पहनी हुई है भाई। बिलाल ये बताइए कि उम्रा करने के लिए कौन से शहर में जाना पड़ेगा? मक्का मुकर्रमा। अच्छा, तो वहाँ क्या करना पड़ेगा? उम्रा कैसे होगा? लादरी। अच्छा, कुछ पहन के जाना पड़ता है उम्रे के लिए? जी, कुछ पहन के जाना पड़ता है उम्रे के लिए? एहराम। एहराम पहन। एहराम कौन से, कितनी चादरों का होता है? 2। लब्बैक याद है आपको? जो चलिए सुना दे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। अब ये बताइए कि आपने स्याह रंग का इमामा पहना है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने किस मौका पर स्याह रंग का इमामा पहना? फतह मक्का के मौका पर। अच्छा, मक्के शरीफ की एक नेकी कितनी नेकियों के बराबर है? 50,000। मदीना पाक की नेकी कितनी नेकियों के बराबर है? मदीना पाक के 50,000। अच्छा अच्छा, चले अदनान मुनीर को माइक दें। अदनान भाई आप दरस निज़ामी कर रहे हैं कौन से दर्जे में? सालिसा। तीसरे दर्जे में आप भी माशाल्लाह। जामियतुल मदीना रंगपुरा। रंगपुरा में। जनाब आप बताएंगे मक्का पाक की एक नेकी कितनी नेकियों के बराबर है? 1 लाख। अच्छा, किबला अव्वल मुसलमानों का कहाँ था? कौन सी मस्जिद? बैतुल मक़दस। बैतुल मक़दस में एक नमाज हुई थी, बड़ी अजीम नमाज। इमाम कौन था, मुक्तदी कौन थे? इमाम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे और मुक्तदी तमाम अंबिया कराम। तमाम। ये किस रात को हुई थी? ये मेराज की रात को। अच्छा, वो रात की तारीख क्या थी? 27। 27। आगे महीना कौन सा था? रजब। एक शेर आला हजरत ने इस नमाज के बारे में लिखा है, नमाज अक्सा में था यही सिर, हो मानाए अव्वल आखिर। अच्छा, याद नहीं है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। ये शेर पूरा करेंगे? अशार से लगाव होना चाहिए, इससे इंशाल्लाह इश्क़ रसूल में मजीद इजाफा होगा। अगले भाई को माइक दें। मुस्तकीम अहमद वल्द आबिद हुसैन, तीसरे दर्जे में आप दरसे निज़ामी कहाँ कर रहे हैं बेटा? जामियतुल मदीना पहाड़ मदीना। आपने तो उम्र ही 15 साल लिखी है बेटा, हमारे तो सिलसिले की उम्र ही 17 साल है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मोहब्बत में आपसे 1-2 सवाल पूछ। अशार सुनाएंगे? कौन सी नात पसंद है आपको? अशार से इतना लगाव नहीं है। लगाव ही नहीं है, कमाल है यार, एंज करते हो तुसी। चले जनाब, नमाज की शराइत कितनी है? नमाज की 7 शराइत है। कितनी? नमाज की 7 शराइत है। अच्छा, फिर नमाज के फ़राइज़ कितने हैं? शाहिद अत्तारी भाई आप बीए कर चुके हैं, जामियतुल मदीना के दर्जा साबिया के तालिब इल्म भी हैं माशाल्लाह। अच्छी उम्र में आकर आपने जामियतुल मदीना ज्वाइन किया, ये बड़ी खुशी की बात है माशाल्लाह। इसके अलावा भी कुछ काम काज करते हैं? जी, कंप्यूटर कोर्सेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ड्राइविंग सीखी है, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज वो किया हुआ है, और जामियतुल मदीना में पढ़ाई है, साल ग्रेजुएशन। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने किसी नबी अलैहिस्सलाम को मेराज के सफ़र में अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा? जी हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुर्ख टेले के करीब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या आसमानों पर भी मुलाकात हुई? बेशक वो आसमानों पर भी मुलाकात हुई। अच्छा, और उस मुलाकात में एक ज़बरदस्त उम्मत को फ़ायदा भी हुआ, वो क्या था? 50 नमाजें जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज की गई थी वो तखफीफ करके तो 5 नमाजों में बदल दी गई। अच्छा, जी सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का एक मशहूर शेर है, उसका अगर दूसरा मिसरा आपके जहन में हो, सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू मैं रूह कुदस से नात लिखने के लिए ऐसी शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूह कुदस से ऐसी शाख। महसिन महमूद भाई माइक दीजिए। अच्छा, आप बेटा क्या करते हैं? माइक करीब करके बोलेंगे। जामिया में पढ़ता हूँ। कौन से दर्जे में? उला में। जामियतुल मदीना उला में पढ़ते हैं। अच्छा, जामियतुल मदीना बहार मदीना। ठीक है, आप ये बताइए मर्दाना खुशबू और जनाना खुशबू में क्या फ़र्क है? सवाल फिर करें। मर्दाना खुशबू कौन सी होती है, जनाना खुशबू कौन सी होती है? मर्दाना खुशबू लगाएं उसका रंग ज़ाहिर नहीं होगा लेकिन खुशबू आएगी। जनाना खुशबू में रंग ज़ाहिर होगा लेकिन खुशबू नहीं आएगी। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं कि तशबीह किसको कहते हैं?
اچھا اگلے بھائی کو دیں. فیضان حسین, کتنی عمر ہے؟ تقریباً 17 سال. تقریباً 3 سال کم. 14 تو ہو ہی گئی ہے, 3 باقی ایسا تو نہیں ہے؟ اچھا کیا کرتے ہیں بیٹا؟ فضائل مدینہ پڑھتا ہوں. کون سے درجے میں؟ اولا. اولا میں. جی. مدنی منع جو ہے وہ بہت ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ کب ہوگا ذہنی آزمائش. 4 مقبول فرشتے, جو 4 مقرب فرشتے ہیں ان کے نام بتائیں. حضرت جبرائیل, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام. روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام بتائیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام. سور پھونکنے والے فرشتے کا نام بتائیں. حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام. چلے محمد ثقلین ولد غلام نبی, آپ بیٹا درس نظامی کر رہے ہیں, کون سے درجے میں؟ اولا. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. نہیں آتا اس میں جناب. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. کیا مرتبہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جنت کی کنجی کس عبادت کو کہا گیا؟ جی جنت کی کنجی نماز کو. ٹھیک ہے, تشریف رکھیں گے سارے اسلام میں. علی عمران, آپ درس نظامی کر رہے ہیں درجہ ثالثہ میں یا ثانیہ میں؟ ثانیہ. اچھا, رکن شورا اظہر بھائی آپ سے سوال کریں گے. جی اظہر بھائی. نماز کی کنجی کسے کہا جاتا ہے؟ نماز کی کنجی. نماز کی کنجی وہ تو امام صاحب کے پاس ہوتی ہے مسجد کی کنجی. تو نماز کی کنجی, نماز تو جنت کی کنجی ہے. نماز کی کنجی کسے کہا گیا؟ امامت. آپ آئینہ دیکھنے کی دعا سنائیے. آئینہ دیکھنے کی دعا, آئینہ دیکھتے وقت کی دعا. الرحمن الرحیم. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. جی سوال کریں. آپ یہ بتائیں, ماشاءاللہ آپ درجہ ثالثہ میں تیسرے درجے میں ہیں, دوسرے درجے میں ہیں. آپ یہ بتائیں کہ درجہ اولا کے اندر ششماہی اول کا جو نصاب تھا وہ کون سی کتابیں تھیں آپ کی؟ خاصیات, خلاصۃ النحو. خاصیات کون سی خاصیات؟ خاصیات ابواب الصرف. خاصیات نہیں, جامع ابواب الصرف, قانون شریعت. چلے اگلے بھائی کو بھائی. خلاصۃ النحو نصاب الصرف. حسن ممتاز ول ممتاز احمد, آپ بی ایس آنرز کر چکے ہیں زولوجی میں. جی. زولوجی سے کیا مراد ہے؟ اسٹڈی آف اینیملز. اینیملز میں. اور شاباش ہے جناب. کچھ 7 قسم کے پرندوں کے نام بتا دیں. چکور, بطخ, اسپیرو. انگلش میں بتا سکتا ہوں؟ ہاں انگلش میں بتا دیں. اسپیرو, پیجن, ڈک, ہین, آسٹرچ, کیوی. زرافہ جو ہے وہ دنیا کے کون سے خطے میں پایا جاتا ہے؟ افریقہ. افریقہ میں. جی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کسی مشہور سواری کا نام بتائیے. قصوہ. وہ کیا تھی؟ اونٹنی. نبی پاک کے جو مبارک دراز گوشت کا نام بتا سکتے ہیں؟ دراز گوشت کہتے ہیں ویسے تو گدھے کو. نبی پاک جس پر خچر پر سواری کرتے تھے وہ مشہور خچر ہے, اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ اس کا نام. ویسے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ کے ٹاپک سے متعلق ہے, ناظرین کو بھی بہت مزہ آئے گا کہ پیارے آقا کے بڑے معجزات ہیں. نبی پاک نے جس جانور پر جب سواری کی نا, اس کے بعد اس جانور کی عمر وہیں رک گئی, اس کے بعد وہ کبھی بوڑھا نہ ہوا. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. یافور اس دراز گوشت کا نام تھا. بہرحال سوال کیجئے. اب یہ فرمائیے کہ جو کیٹ فیملی ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیٹ فیملی, میملز. کیٹ فیملی, جتنی بھی کیٹ فیملی کے, لائن ہے, ٹائیگر ہے, اس کے لیے خاص نام ہے. آپ زولوجی پڑھ رہے ہیں, آپ ارشاد فرمائیے کیا نام ہے وہ؟ کیٹ فیملیز, میملز ہی ہیں یہ. اچھا, پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ قومی پرندہ چکور. اور جانور کون سا ہے؟ مارگھور. ٹھیک ہے, اگلے بھائی کو نمبر دیجیے, مائک دیجیے گا. محمد طیب بن محمد سرور, بی ایس سی ایس, اس سے کیا مراد ہے؟ بی ایس کمپیوٹر سائنسز. اچھا جناب, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں فی الحال جاب کر رہا ہوں. جاب کر رہے ہیں کہاں پر؟ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ میں. جی, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ. آرمی ویلفیئر ٹرسٹ میں جب آپ جاب کر رہے ہیں تو چھٹی کیسے ملے گی اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو؟ آپ کو تو 1 ہفتے کے لیے پہلی بار آنا پڑے گا, پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے مزید کچھ دن رکنا پڑے گا. اگر جیتنا ہے تو پھر تو کچھ دن رکنا پڑے گا نا. انشاءاللہ میں چھٹیاں لے لوں گا. چھٹی لے لیں گے آپ. چلیں جناب, 4 مقرب فرشتوں کے نام سنائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. یہ بتائیے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟
जी अशरा मुबशरा में से। वो कौन सी जंग थी जिसमें मुसलमानों की मदद फरिश्तों की फौज के जरिए की गई? गज़वा बदर। अच्छा, आप ये बताएं नमाज के अहकाम में कितने अल्फाज हैं, कितने हुरूफ हैं? जल्दी नहीं। आप ये इरशाद फरमाएं, सफ़र के दौरान दुआ करने की फजीलत क्या है? इससे आप हादसे से बच जाते हैं और अगर ज़्यादा आपको चोट लगनी हो तो फिर भी आप सफ़र की दुआ सुना दें। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा, ये कोई अशार से लगाव है आप? कौन सा कलाम पसंद है आप? सबसे औला इसी कलाम में आपसे शेर पूछता हूँ, वो सुना दीजिए। तो आप पूरी नात सुना देंगे ना? क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। चलिए अगले भाई को दीजिए। फैसल मंजूर, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफए कर चुके हैं, दरसे निज़ामी कर रहे हैं, कौन से दर्जे में? दर्जा राबिया। दर्जा राबिया। कौन से जामिया में? मरकती जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना। फैज़ान मदीना जामियातुल मदीना में। जी जनाब, सवाल कीजिए इमरान भाई। आप ये बताएं कि आपने सानिया, आप चौथे दर्जे में हैं राबिया के अंदर, सानिया में आपने जो किताबें पढ़ी थी उसका शशमाही सानी का निसाब बताएंगे? हिदायतुन नहव, हिदायतुन नहव की सय्यदी आला हज़रत ने शरह लिखी थी, कितनी उम्र में लिखी थी? हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कितनी उम्र में पहला फतवा दिया? तकरीबन 14 साल की उम्र। इमाम अहले सुन्नत का यौम विलादत कौन सी तारीख को है? 10 शवाल मुकर्रम। आपका यौम उर्स? 25 सफर मुज़फ़्फ़र। गौस पाक का यौम उर्स कब है? 11 रबीउल सानी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सुरमा लगाया करते थे? इसमें सुरमा लगाया करते थे। फतेह मक्का कौन से साल हुई? ठीक है, तशरीफ रखिए। मोहम्मद इमरान अत्तारी, BSIT, तफसील बताएं क्या कर रहे हैं इसमें आप? BSIT ये 4 साल ऑनर्स प्रोग्राम है जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर जो भी डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, हाउ टू ऑपरेट देम, और इसमें क्या हो रहा होता है। पढ़ रहे हैं आप? जी, उसमें पढ़ रहे हैं अभी आप? जी मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी वगैरह या मदरसा वगैरह? नहीं, इसके अलावा मैं दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत बर इत्माम और शोबा तालीम दावत इस्लामी से मुंसलिक। अच्छा, माशाल्लाह जनाब। चले भाई, शोबा तालीम से मुंसलिक सवाल कीजिए जनाब। आप ये बताइए कि एक कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एक कंपोनेंट जो होता है वो CPU होता है, ठीक है, और एक उसका मदरबोर्ड होता है। CPU से क्या मुराद है? CPU यानी उसका यानी कि जिसके मुखफ़फ़ किस चीज़ का है? CPU। C से क्या है, P से क्या है, U से क्या है? यानी कंप्यूटर जो है ना, C फॉर, जैसे C फॉर कैट, इस तरह CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी जी सॉरी। अब ये बताइए कि दावत इस्लामी के 104 शोबाजात में एक बहुत अहम शोबा IT का शोबा है और उस शोबे के तहत बहुत काम हुआ है जी। कुछ बताइए क्या काम किया इस शोबे ने आज तक? ये जो शोबा तालीम की IT मजलिस है, इसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई जा रही हैं। वेबसाइट के ज़रिए से लोगों को कोई 5 एप्लीकेशन का नाम बताएंगे मुझे? जी, प्रेयर टाइमिंग्स, इलियासत तार कादरी जी। इसके अलावा हमारे पास अल कुरान ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये दारुल तालीम सुन्नत है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जिस सिलसिले में आए हैं उसकी भी तो एप्लीकेशन है जी। जिस सिलसिले में आए हैं उसकी भी तो एक एप्लीकेशन है भाई, माशाल्लाह। कौन सी है? ज़हनी आजमाइश जी। अगले भाई को माइक दें। शाज़ेब अली वल अताउल्लाह, दरसे निज़ामी तीसरे दर्जे के आप तालिब इल्म हैं, FA भी कर चुके हैं आप। हर रकत में कितनी बार सजदा फर्ज है? हर रकत में 2 बार सजदा फर्ज है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले मर्दों में ईमान कौन लाया? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन सहाबा 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी, उन्हें क्या कहा जाता है? नाम नहीं, उनको कहा क्या जाता है? अशरा मुबशरा। आला हजरत ने अशरा मुबशरा के लिए एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला। ये शेर पूरा कर सकते हैं? अगले भाई को माइक दें।
मुनीबुर रहमान वल्द अब्दुल गफ्फार, आप दरस निज़ामी कर रहे हैं, कौन से दर्जे में बेटा? दर्जा सानिया। दर्जा सानिया। उम्र कितनी है आपकी? 17 साल। 17 हो गई है? ये 2-3 साल कम है? नहीं, 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को हुई है? अरे होने वाली है, 15 दिन है बाकी। जब ये आएंगे वहां पर जब तक 17 साल के पूरे हो चुके जब तक हो गए होंगे जनाब। अच्छा ये बताइए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया, उस वक्त नबी पाक की उम्र मुबारक कितनी थी? 17 साल। बीबी खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। प्यारे आका की उम्र 25 साल थी। ठीक है, नबी पाक ने जब ऐलान नबूवत फरमाया उससे पहले ही प्यारे आका के 2 लक़ब अहले मक्का में बड़े मशहूर हो गए थे, सादिक और अमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगर भाई सवाल करें। आप तीसरा कलमा सुनाएंगे? सोएब कलमतिन सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माशाअल्लाह। जलसा किसे कहते हैं नमाज के हकाम में? 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। अमीर अहले सुन्नत अपनी किताब नमाज के हकाम में नमाज के कितने वाजिबात तहरीर फरमाए हैं? नमाज के वाजिबात 33 वाजिबात। अच्छा, तादील अरकान किसको कहते हैं? रुकू से उठने कोमे को तादील, और सजदों के बाद जलसे, दो सजदों में बैठने जलसे को इन्हें तादील अरकान कहते हैं। औरंगजेब वल्द मोहम्मद दिलावर, जी जनाब आप क्या कर रहे हैं? दरस निज़ामी कौन से दर्जे में? सानिया। सानिया में। आप हाफिज भी हैं? नहीं। कुरान पाक की दुल्हन किस सूरत को कहा जाता है? कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरत यासीन। सूरह यासीन पढ़ने की फजीलत क्या है? जो सूरत यासीन पढ़ेगा वो अज़ाब कब्र से बचा रहेगा। कितने कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है कोई सूरह यासीन पढ़ता है तो? वो कौन सी सूरत है जिसको तिहाई कुरान के बराबर कहा गया? 3 बार पढ़े तो पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। सूरतुल इखलास। ठीक है। आप ये बताइए, दावत इस्लामी के मदनी काम करते हैं आप? जी। कोई से 4 मदनी कामों के नाम बताइए। इसदाए मदीना, मदनी हल्का, चौक दर्स और मदरसतुल मदीना बराए बालिकान। ठीक है, तशरीफ रखें इस्लाम भाई। ये आखिरी 4 तलबा आएंगे और उसके बाद नमाज असर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जी इमरान भाई, आपने M.Com किया है और अभी क्या कर रहे हैं? अभी M.Com कर रहा हूँ। M.Com कर रहे हैं। ये इस वक्त जो इस्लामी महीना चल रहा है वो कौन सा है? सफरुल मुज़फ़्फ़र। इसके बाद कौन सा महीना आएगा? रबीउल अव्वल। इसके बाद कौन सा आएगा? रबीउल सानी। उसके बाद कौन सा? जमादुल अव्वल। फिर आगे जमादुल सानी। सफरुल मुज़फ़्फ़र इस्लामी साल में कौन सा महीना है? दूसरा है। पहला कौन सा है? मुहर्रम। आखिरी कौन सा है? ज़ुल्हिज्जातुल हराम। अच्छा जनाब, ज़ुल्हिज्जा में क्या अहम काम होता है? 2 बड़े अहम काम होते हैं पूरी दुनिया में। कुर्बानी होती है और इसके साथ ईद उल अज़हा। माशाल्लाह। अगले भाई को दीजिए। तैयब जिया बेग, आप दौरे हदीस में माशाल्लाह कौन से जामियातुल मदीना में? जामियातुल मदीना जी 11 मरकज दौरे में पहुंच गए। अभी तक आप मुन्ने ही लग रहे हैं माशाल्लाह। अगले साल उस्ताद बन जाएंगे। क्या बात है जनाब, अल्लाह आपको और तरक्की। इस्लामाबाद पहुंच गए हैं जी 11। अच्छा, वहाँ पढ़ते हैं इस्लामाबाद में? जी दौरा हदीस वहाँ है। भाई आप सियालकोट से ताल्लुक है? मामू फौत हो गए थे पिछले दिनों, तो उस वक्त आया था। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उनके पास आए थे और ऑडिशन में भी हिस्सा ले लिया। वैसे रिहाइश भी वहीं की है? वैसे है भी वहीं के? अच्छा है, सियालकोट के। दौरा वहाँ कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको और बरकत दे। ये बताइए कि इस्लामी साल में 8वां महीना कौन सा है? शाबान का। अच्छा, इमाम गजाली की 3 तसनीफात का नाम बता दें। इमाम गजाली की अहयाउल उलूम। इमाम बुखारी को बुखारी क्यों कहा जाता है? बुखारा शहर की निस्बत से इनको। बुखारा शहर कहाँ है? बुखारा शहर मुल्क शाम में। मुल्क शाम में? बुखारा रशिया में है। आजकल जो रशिया है ना उसमें बुखारा है। हाँ चले जनाब। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जब दफनाया गया तो आपकी क़ब्र मुबारक से की मिट्टी से खुशबू आती रही। आप बताएं कितने अरसे तक वो खुशबू आती रही और लोग उससे तबर्रुक लेते रहे? 1 साल तक। इमाम बुसैरी क्यों मशहूर है? सीधा बुर्दा शरीफ की वजह से। गसीलुल मलाइका किस सहाबी को कहा जाता है? अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला कहा जाता है। अगले भाई को माइक दें। समीउल्लाह वल्द मंजूर हुसैन, जनाब आप 6 साल दरस निज़ामी कर रहे हैं और दूसरे दर्जे में हैं। आपकी उम्र तकरीबन 18 साल है। आप ये बताइए गसीलुल मलाइका किस सहाबी को कहा जाता है?
मेरे भाई अभी तो बताया अब्दुल हबीब भाई ने। वो ध्यान कहीं और होगा ना। अच्छा, जिस्म से कुत्ता छू जाए तो क्या हुक्म है? जिस्म से अगर कुत्ता छू जाए तो उसके बारे में कोई ममानत नहीं है, ना कपड़ा नापाक नहीं होगा? नहीं होगा। अगर कुत्ते का जिस्म तर है फिर क्या होगा? अगर तर था, ये था कि अगर वो मालूम है कि वो नापाक जगह से वो तर होगा तो फिर कपड़े नापाक। अच्छा, फैज अत्तारी वल्द रब नवाज जी। फैज भाई ये बताइए कि किसी को शक है मेरा वुजू है कि नहीं, तो क्या होगा? उसका वुजू बाकी है। उसका वुजू बाकी है। शक की वजह से कोई वुजू करेगा तो उसका क्या हुक्म है? शक की वजह से वुजू करना शैतान की इताअत। अच्छा, इतने घबराए हुए क्यों? इजी मुस्कुराएं, टेंशन क्यों? आराम से माइक करीब करें, आवाज निकालें। अगर सेलेक्ट हो गए तो दुनिया देखेगी आपको, तो आपकी आवाज निकलनी चाहिए ना। अशार से कोई लगाव है? मुतफरिक अशार पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, कोई एक खास कलाम आपको बड़ा पसंद हो? खास नहीं है। अच्छा चले, कौन कौन सा शेर आपको बहुत पसंद है? सलाम का। जी सुनाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों तबस्सुम मिनल्लाह वल कहकहतु मिनश शैतान, इसका माना क्या है? मुस्कुराना अल्लाह की तरफ से है और कहका शैतान। नबी पाक ने जिंदगी में कितनी बार कहका लगाया? नबी पाक ने जिंदगी में कहका ना लगाया। प्यारे आका ने कितने जुमे अदा फरमाए? जुमे कितने अदा? एक जुमा था। एक जुम्मा अदा किया। अच्छा, मोहम्मद वसीम अकरम जनाब, आप हज का या जुमे का था? जफरवाल से हैं और बीएस मैथ्स में किया आपने? मैथमेटिक्स में कर रहे हैं? कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या कर रहे हैं? अकेडमी या गाँव तो वो चला वहाँ पढ़ाते हैं? चला रहे हैं, अकेडमी चला रहे हैं? हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है, इतनी छोटी सी उम्र में आप ये भी कर रहे हैं। जनाब आप बता दें भाई कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कितने जुम्मे अदा किए? 12। अच्छा, जहाँ पहला जुमा अदा किया वहाँ कोई यादगार मौजूद है आज भी? मस्जिद नबवी में अदा की। अच्छा बेटा, ये तो हमारे नमाज के अहकाम में जो आपको निसाब दिया गया था, 500 जुम्मे अदा किए और मस्जिद जुमा आज भी कायम है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का नाम बता दें। ठीक है, सारे स्लाइड में तशरीफ रखेंगे, अब नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद जो अगले राउंड के लिए सेलेक्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदरी चल के नातीन, एक तवील ऑडिशन के बाद अब हम पहुंचे हैं तीसरे मरहले तक। हमने सेलेक्ट करने हैं 4 इस्लामी भाई। 3 इस्लामी भाई जाएंगे बाबुल मदीना, एक होंगे उनके मुआविन, ताकि किसी सूरत में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चौथे उसको रिप्लेस कर सके। अब तीसरे मरहले में हम कुछ इस्लामी भाइयों को सेलेक्ट कर चुके हैं। मेरे नज़दीक ये सारे के सारे इस काबिल हैं कि ये बाबुल मदीना जा सकते हैं, मगर हमने ज़ाहिर है एक टीम सेलेक्ट करनी है, तो इसमें हमें चंद इस्लामी भाई ही हमें इसमें से ले सकेंगे। पहले नंबर पर हैं, सबकी बुलंद आवाज़ में इंशाअल्लाह अल्लाह के जिक्र की नीयत से कहेंगे सुभान अल्लाह, मोहम्मद इमरान अत्तारी वल तारिक महमूद भट्ट। इमरान पे आगे आ जाएंगे। अच्छा, एक और इमरान भी है जिनका नाम है इमरान अत्तारी वल्द शमसुद्दीन। यहां बैठेंगे बेटा, अब यहां बैठते जाएंगे। मोहम्मद अदनान मुनीर वल्द मुनीर अहमद। मोहम्मद नईम अत्तारी वल्द मोहम्मद मुश्ताक। उमर सोबान अत्तारी वल्द मोहम्मद अल्ताफ। हसनैन मुमताज वल्द मुमताज अहमद। अभी से थक गए, जोर से क्या कहेंगे? मोहम्मद तैयब वल्द मोहम्मद सरवर। शाहिद अत्तारी वल्द मोहम्मद असलम। मोहम्मद फहीम अत्तारी वल्द सखावत अली। अच्छा, इन इस्लामी भाइयों के अलावा एक इस्लामी भाई वो हैं जिनको हमने मरकजुल औलिया लाहौर का जब ऑडिशन किया था तो वहां पर सियालकोट यानी जियाकोट की टीम के लिए सेलेक्ट किया, क्योंकि इनका ताल्लुक जियाकोट से है। उनका नाम है मोहम्मद हसनैन अत्तारी। मोहम्मद नईम अत्तारी वल्द मोहम्मद मुश्ताक। उमर सोबान अत्तारी वल्द मोहम्मद अल्ताफ। हसन मुमताज वल्द मुमताज अहमद। मोहम्मद तैयब वल्द मोहम्मद सरवर। शाहिद अत्तारी वल्द मोहम्मद असलम। इमरान अत्तारी वल्द शमसुद्दीन आइए। हसन मुमताज वल्द मुमताज अहमद आइए। मोहम्मद तैयब वल्द मोहम्मद सरवर आइए। और उमर सोबान अत्तारी वल्द मोहम्मद अल्ताफ, ये आइए। हमें इन 5 में से 2 इस्लामी भाई सेलेक्ट करने, 2 हमने कर लिए हैं,
जिसमें एक हमारे हसनैन हैं, एक और हमने कर लिया है। अब इन 5 में से कोई 2 हैं। पहले ये बता दें ईमानदारी से, कौन ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि मैं कराची नहीं जा सकूंगा? अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे कामकाज की वजह से, मेरी जॉब की वजह से, मेरी स्कूल की वजह से छुट्टी नहीं मिलेगी तो वो इशार कर दे, हम आपको सेलेक्ट घर से इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले आपको 1 हफ्ता वहाँ रहना पड़ेगा फैज़ान मदीना में, और अगर आपकी टीम जीत गई हम आपको वापस भेजेंगे, फिर दोबारा आपको 1 हफ्ते के लिए हो सकता है आना पड़े। तो आप ये टाइम दे सकेंगे? पहले ये बताएं। कोई ऐसा है जो नहीं दे सकेगा तो वो पहले ही बता दें, ठीक है? माइक आपके पास है। कल भी ऐसा हुआ था कि इसलिए मैंने कहा मैं सेलेक्ट तो हो गया हूँ लेकिन मैं जा नहीं सकूंगा, तो फिर उन्होंने जिसको आप कहें कि वॉलंटरली अपने आप को वो कर कोई दिया। ऐसा होता है ना रुकन शुरा की मोहब्बत में आ जाता है, तो वो अभी गले मिल ले रुकन शुरा से, तो जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी, और वहाँ नहीं जा सकता तो ठीक है हम उसको रुख्सत दे देंगे। और ऐसे भी हुआ कि घर चले गए, फिर रात को मुझे फ़ोन आया कि रुकन शुरा से माजरत कर लीजिएगा, मैं नहीं जा सकता, सेलेक्ट था हमारी तरफ से। ये हो जाएगा ना कि अगर आप सिलेक्ट हो गए, जिनको और को किसी को करना चाह रहे थे तो वो आपकी वजह से नहीं किया, बाद में आप भी ना गए, तो हमारी तो ज़ियाकोट की टीम फिर वो टूट जाएगी ना। चले पहले दें। आपका नाम हुजूर? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम भाई, ये बताएं किसी उज़ुव के धोने से क्या मुराद है? वज़ू के धोने से मुराद है कि 2 कतरे पानी बह जाए, हर जिस्म के उस हिस्से पर हर 2 कतरे पानी बह जाए, मिकदार के मुताबिक बराबर। बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई वुजू करेगा तो उसकी क्या फजीलत है? उसकी फजीलत ये है कि जब तक वज़ू बाकी रहेगा उसको नेकियां मिलती रहेंगी। जी कोई सवाल करेंगे सर? नमाज इशराक व चाश्त की कोई फजीलत बताएंगे आप? नफली नमाज है तो खुसूसी फजीलत नहीं मालूम। मिसवाक के कुछ फ़ज़ाइल बता दें। मिसवाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और दूसरा अशार याद है कुछ? कोई कलाम पसंद है? जी वसूए लालाजार फिरते हैं, तेरे गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते कोई हैं, क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। अगले भाई को दें। इमरान अत्तारी वल शमसुद्दीन है आपका नाम? जी। अच्छा इमरान, ये बताइए कि इसराफ किसको कहते हैं? फजूल खर्ची के लिए भी आ जाता है, वज़ू में भी इसराफ होता है। अगर हम किसी वज़ू को 3 बार की धोने की जगह 4 बार धोएंगे तो ये भी इसराफ है। बावुज़ू रहने की, ये बावुज़ू रहना किसकी सुन्नत है? सहाबा कराम की सुन्नत है, बुजुर्गान दीन की सुन्नत है। हमेशा बावुज़ू रहना क्या है? मुस्तहब। इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाएगा? अगर मसल पर लगाया गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। किससे लगाया, किस पे लगाया गया? मसल्स पर। मसल पर लगाएगा तो इससे वज़ू। कै आने की सूरत में क्या होगा? रोज़ा टूट जाएगा? उल्टी आ जाए तो? कै आने से अगर वो मुंह पर से ज्यादा है तो वज़ू टूट जाएगा। वज़ू टूट जाएगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा अगले भाई को माइक दें। हसनैन मुमताज जी जनाब, आप ज़ूलॉजी के पूछें जनाब। हसनैन आप ये बताइए कि दीन इस्लाम के अंदर ल्यूनर मूवमेंट्स की क्या अहमियत है? चांद के बढ़ने, कम होने, नज़र आने की क्या अहमियत है? इस्लामी माह इसके मुताबिक होता है। और इसके अलावा ईद वगैरह हम चांद को देख के मनाते हैं। सूरज की मूवमेंट की क्या अहमियत है? सूरज की मूवमेंट, चांद डिपेंडेंट है सूरज पे। सूरज की मूवमेंट की इस्लाम में क्या अहमियत है? जी सूरज की मूवमेंट की इस्लाम में क्या अहमियत है? नमाजें पढ़ते हैं हम सूरज की मूवमेंट से, और नमाजें अदा करते हैं सूरज की मूवमेंट से। उसके अलावा जो ममनू वक्त हैं वो भी सूरज की मूवमेंट से ही हम। अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम 5। कौन कौन से? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इनमें तरतीब जो बयान की गई है ये इसी तरह फ़र्ज होते हैं या बगैर तरतीब के भी फ़र्ज हैं? नहीं, पहले कलमा तैयबा, फिर नमाज, रोज़ा, फिर ज़कात, फिर हज। वही पूछ रहे ना, तरतीब लाजिम होती है या नहीं होती? जी तरतीब लाजिम। अगर कोई नमाज ना पढ़े तो फिर रोज़ा भी नहीं पढ़े रखेगा? नहीं, पहले तो नमाज है ना। अच्छा 5 चीज़ें फ़र्ज हैं। हाँ, नमाज भी फ़र्ज है और ज़कात। जब नमाज का वक्त आएगा तो पहले नमाज पढ़ेंगे, जब रोज़ा रमज़ानुल मुबारक में है तो रोज़ा अदा करेंगे। कौन सा कलाम पसंद है आपको? सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। हमारा न बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें। ये याद। अगले भाई को माइक दें। दावत इस्लामी की इस्तिलाह में सरदाराबाद किस शहर को कहा जाता है? फैसलाबाद। सरदाराबाद को सरदाराबाद क्यों कहा जाता है?
दावत इस्लामी की इस्लामी का नहीं, कोई वजह होगी ना। जिया कोट को जिया कोट क्यों कहते हैं? अमीर अहले सुन्नत के पीरो मुर्शिद इसी तरह सरदाराबाद में भी किसी की वजह से कहा जाता होगा ना। लाड़काना को क्या कहा जाता है दावत इस्लामी की इस्तिलाह में? हैदराबाद को क्या कहा जाता है? हैदराबाद जमजम नगर क्यों कहा जाता है? अमीर अहले सुन्नत के एक या रुकने शुरा भी थे जमजम अत्तारी। मुफ्ती दावत इस्लामी, मरहूम मुफ्ती दावत इस्लामी का नाम क्या है? मुफ्ती फरूक अत्तारी। कौन से अशार पसंद है आपको? कौन सा आला हजरत के। कौन सा कलाम? सबसे औला वाला हजरत। सबसे औला वाला हमारा। जब बेसन पे कोई शख्स वुजू करे तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? खड़े खड़े कोई वुजू करे तो वुजू हो जाएगा? जी हाँ जी, हो जाएगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तैयब। तैयब भाई, अच्छा। उमर सोबान अत्तारी। मोहम्मद सोबान अत्तारी। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं? जी। सोबान भाई के हम नाम है। चले भाई, सोबान भाई फिर आप ही सवाल कर लें। इंजीनियरिंग का कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा। मिसवाक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? एक ईंट के बराबर होनी चाहिए। एक ईंट के बराबर? एक जैसे क्या कहते हैं गिट। बालिश क्या कहते हैं इसको वैसे आप लोग? बालिश नहीं, वैसे क्या कहा पहले? गिट। अच्छा, गिट कहते हैं पंजाबी में गिट कहते हैं। चलो अभी मैं सीख जाऊँ ना, मेरे लिए भी जरूरी है ना। अच्छा, मोटाई कितनी होनी चाहिए मिसवाक की? ये बताइए कि बातचीत करनी हो तो सलाम कब करना चाहिए? सलाम में पहल करना। सलाम पहल करेंगे। अच्छा, सलाम का वो कौन से अल्फाज है जो अदा करे तो सबसे ज्यादा नेकियां मिलती हैं? पूरा सलाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके आगे भी है या इतना ही है? इतना ही है। इतना ही है। अच्छा, किसी के घर जाएं तो इजाजत तलब करने का तरीका क्या है? किसी के घर जाएं तो पहले एक मरतबा दस्तक दें, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, फिर अगर कोई बाहर ना आए तो वापस चले जाना चाहिए। कौन से अशार कौन सा कलाम आपको पसंद है? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना। मैं तो आप ही के कलाम के अशार आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा जनाब, मोहम्मद तैयब कौन है? मोहम्मद हसनैन मुमताज़ कौन है? और इमरान अत्तारी वल शमसुद्दीन। आप तीनों रहेंगे, बाकी दो इस्लाम में तशरीफ रखेंगे। मोहम्मद तैयब और इमरान अत्तारी, आप खड़े हो जाएं और हमें नमाज के मौजू पर 2 मिनट का बयान करके सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरिया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब। नमाज के मतलब चंद फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुलाहिज़ा फरमाइए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है, नमाज मोमिन की मेराज है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में हमें मिलते हैं। इस मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बराकातुहुमुल आलिया की मायानाज़ तालीफ़ नमाज के अहकाम मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के माह के मदनी माहौल में नमाज के मतलब हमें काफ़ी मौक़े मयस्सर आते हैं। बेटा आप नाज़ शरीफ पढ़ सकते हैं? कोई एक शेर तर्ज में सुना दें। सुना दें। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्सो जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। मोहम्मद तैयब आपका नाम है ना? इमरान अत्तारी आइए, आपका नाम तैयब है, आइए तैयब आइए, आप बैठे इमरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स हर रोज़ 1000 मरतबा मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ेगा वो तब तक मरेगा नहीं जब तक मेरी ज़ियारत ना कर ले। सुन्नत मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी अदाओं का नाम है। मिसवाक मेरे आका की बहुत ही मीठी और प्यारी सुन्नत है। इससे दांतों की हिफाजत के लिए किया जाता है। उसके बाद जो इमामा शरीफ है ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी सुन्नत है। वज़ू में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। अच्छा, ये कोई नात का शेर सुना दें। या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। या मुस्तफ़ा अता हो। माशाल्लाह, ये कलाम किन का है? या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, ये कलाम किसका है नहीं पता? इसका मक्ता सोच ले, मक्ते से याद आ जाएगा। मीज़ां पे सब खड़े हैं, आमाल तुल रहे हैं, रख लो भरम खुदा अत्तार कादरी का। तशरीफ रखें, बैठे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक और मरहले के बाद, तवील मुशावरत के बाद जी हमने सियालकोट ज़ियाकोट की टीम सेलेक्ट कर ली है। वैसे तो जितने इस्लामी भाई हमने इस 3rd राउंड के लिए बुलाए ये सारे ही माशाअल्लाह इस काबिल हैं कि इनको बाबुल मदीना ले जाया जाए, लेकिन ज़ाहिर ज़हनी आजमाइश इसी का नाम है। कुछ सेलेक्ट होते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। तो जो सेलेक्ट हुए हैं उनमें 3 इस्लामी भाई तो टीम का हिस्सा होंगे, चौथे उनके मुआविन के तौर पे होंगे। पहला नाम है हसनैन मुमताज़ वल मुमताज़ अहमद। जोर से क्या कहेंगे जनाब? दूसरा नाम जो इस टीम का हिस्सा होंगे मोहम्मद तैयब वल्द मोहम्मद सरवर। अच्छा, सरवर, ये मोहम्मद तैयब वल्द मोहम्मद सरवर जो हैं ये मुआविन होंगे, ये चौथे नंबर पर इस टीम का हिस्सा होंगे। आप साथ आ जाए, यहां खड़े होंगे। बाकायदा टीम का हिस्सा होंगे शाहिद अत्तारी वल्द मोहम्मद असलम। और तीसरे इस टीम के मेंबर होंगे जिनको हमने सेलेक्ट किया था मरकजुल औलिया लाहौर में, बहुत काबिल इस्लामी भाई हसनैन अत्तारी। इन चारों को हम बाबुल मदीना कराची का इंशाअल्लाह टिकट पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। इज्तिमा के इख्तिताम की दुआ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।